परमेश्वर दास. So chapter 11.29 Adi Lila. परमेश्वर दास नित्यानंदैक शरण कृष्ण भक्ति पाय तारे जे करे स्मरण. तो फिफ्थ गोपाल ऑफ कृष्ण लीला. अभी तक कितने गोपाल बता दिए उन्होंने? 11 गोपाल के बारे में चर्चा हो रही थी. गोपाल कितने हैं टोटल? 12 है ना. 12 गोपाल में ये फिफ्थ गोपाल है. यानी गोलोक वृंदावन में ये गोपाल, ये ग्वाल बालक हैं जो नित्यानंद बलराम जी के साथ भी रहते हैं. तो परमेश्वर दास ये फिफ्थ है कृष्ण लीला के. तो कंप्लीटली सरेंडर टू द लोटस फीट ऑफ नित्यानंद. एनीवन हु रिमेंबर्स हिज नेम परमेश्वर दास विल गेट लव ऑफ कृष्ण वेरी इजीली. तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के संगी लोगों को स्मरण करता है तो उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है. इसलिए ये सब नाम क्यों दे रहे हैं? ताकि हमको स्मरण आए. हमको भौतिक लोग स्मरण ना आते हुए हमको भगवान के संगी लोग स्मरण आए. Purport by Srila Prabhupada. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in his Anubhashya says that the Chaitanya Bhagavat states that Parmeshwar Das, known sometimes as Parmeshwar Das, Parmeshwari Das, was the life and soul of Sri Nityanand Prabhu. The body of Parmeshwar Das was the place of Lord Nityanand's pastimes. Parmeshwar Das, who lived for some time at Khada Daha village, was always filled with the ecstasy of a cowherd boy. सदैव वो ग्वाल बालक के भाव में रहते थे. तो पहले वो अर्जुन थे जो कृष्ण के मित्र थे और बलराम के मित्र थे. कृष्ण और बलराम के मित्र थे. तो ये अर्जुन गोलोक वृंदावन क्या भी अर्जुन है. तो ही वॉज द फिफ्थ अमॉन्ग द 12 गोपालर्स. ही accompanied Srimati Janava Devi when she performed a festival at Khetari. It is stated in the Bhakti Ratnakar that by the order of Srimati Janava Mata, he installed Radha Gopinath in the temple of Attapur in the district of Hugli. Okay, ये अलग है. The Attapur station is a narrow gauge railway line between Howrah and Amata. Another temple in Attapur established by the Mitra family is known as Radha Govinda temple. In front of the temple, in a very attractive place among two bakula trees, a kadamba tree, is the tomb of Parameshwari Thakur. उनकी समाधि है परमेश्वर ठाकुर की. And above it is an altar with a tulsi bush. It is said that only one flower a year comes out of the kadamba tree. It is offered to the deity. Parameshwari Thakur belonged, it is said, to a Vaidya family. A descendant of his brothers is at present a worshipper in the temple. Some of their family members still reside in the district of Hugli, near the post office of Chanditala. The descendants of Parameshwari Thakur took many disciples from Brahmana families, but as these descendants gradually took to the profession of physicians, persons from Brahmana families ceased becoming their disciples. The family titles of Parameshwari's descendants are Adhikari and Gupta. Unfortunately, his family members do not worship the deity directly. They have engaged paid brahmanas to worship the deity in the temple. तो कई बार ऐसे मंदिर में होता है कि उनके वंशज ने पूजा करते हुए कई ब्राह्मणों को बुलाकर उनको पैसे देकर उनसे पूजा करवाते हैं. हालांकि ये स्टैंडर्ड नहीं है. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार एक टेम्पल में गए थे, मंदिर में गए थे, तो वहाँ पे प्रसाद लेने वाले थे पर मना कर दिया क्योंकि वहाँ पे पेड़ पुजारी थे. इसलिए क्योंकि जो रसोई भी कुक करने वाला है वो पेड़ होगा तो फिर तो पैसे के लिए कर रहा है, तो फिर भाव क्या रहेगा. तो हम वो भी पैसा करेंगे, हम भी पैसा करेंगे. इससे अच्छा है कि स्वयं पाक, स्वयं बना के भगवान को भोग लगा के खा लेना. इन द टेम्पल Baladev and Sri Radha Gopinath are together on the throne. It is supposed that the deity of Baladev was installed later because, according to transcendental mellow, Baladeva, Krishna and Radha cannot stay on the same throne. On the full moon day of Vaishakha, the disappearance festival of Parameshwar Thakur is observed in this temple. जगदीश पंडित हय
जगत पावन कृष्ण प्रेमामृत वर्षे जैन वर्षा घन। 15th ब्रांच 15वीं शाखा कौन है? जगदीश पंडित, पूरे जगत का उद्धार करने वाले। डिवोशनल लव ऑफ कृष्ण शॉवर्ड फ्रॉम हिम लाइक टॉरेंट्स ऑफ रेन। भक्ति की वर्षा करते थे कृष्ण प्रेम भक्ति की। श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, तो जगदीश पंडित का जो वर्णन है वो चैतन्य भागवत में भी लिखा है आदि खंड में, और चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में। यशोदा ग्राम उनका गांव था जो कि नदिया के पास में है, और उनके पिता भट्ट नारायण के पुत्र थे जिनका नाम था कमलाक्ष। उनके पिता और माता दोनों वह भगवान विष्णु के भक्त थे। फिर उनके मृत्यु के बाद, पिता माता के मृत्यु के बाद, जगदीश अपनी पत्नी दुखिनी और उनके भाई महेश वो उनके जन्मस्थान को छोड़कर मायापुर में रहने लग गए जगन्नाथ मिश्रा के साथ और बाकी वैष्णव के साथ। तो जगन्नाथ मिश्रा पिताजी है महाप्रभु के। ओके, तो चैतन्य महाप्रभु जगदीश को जगन्नाथपुरी प्रचार करने के लिए बाद में भेजते हैं, हरिनाम संकीर्तन प्रचार करने के लिए। जगन्नाथपुरी से लौटते हुए जगन्नाथ के आदेश के अनुसार उन्होंने जगन्नाथ के विग्रह यशोदा ग्राम में स्थापित किए। ये कहा जाता है कि जगदीश पंडित ने जगन्नाथ की जो विग्रह हैं वो स्वयं लाए हैं यशोदा ग्राम में। उन्होंने विग्रहों को बांध दिया था एक लाठी से, और वैसे वो लेके आए थे इस गांव में। तो जो मंदिर के पुजारी हैं वो अभी आज भी वो लाठी दिखाते हैं, हाँ, जिससे जगन्नाथ के विग्रह को लेके आए थे जगदीश पंडित। नित्यानंद प्रिय भृत्य पंडित धनंजय अत्यंत विरक्त सदा कृष्ण प्रेममय। 16th डियर सर्वेंट ऑफ नित्यानंद प्रभु कौन है? धनंजय पंडित। बहुत ही वैरागी, विरक्त, अत्यंत विरक्त थे और सदैव कृष्ण प्रेम में स्थित थे। कृष्ण प्रेममय अवस्था थी उनकी, ऑलवेज मर्ज इन लव ऑफ कृष्ण। अनुभाष्य में लिखा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कि पंडित धनंजय वो कटवा के पास, कटवा में एक गांव है शीतला, वहाँ पे रहते थे। वो 12 गोपालों में से एक हैं ये। उनका पहला नाम गणोदेश दीपिका, गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार वसुदामा है, यानी गोलोक वृंदावन में उनका नाम है वसुदामा। Sometime ago the zamindars यहाँ पे वन हैज टू गो, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे उनके गांव शीतल ग्राम कहाँ पे है? कैचरा पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट के उधर। और द टेम्पल, मंदिर भी है वहाँ पे। द टेम्पल वॉज अ थैच्ड हाउस विथ वॉल्स मेड ऑफ दैट। तो एकदम झोपड़ी जैसा मंदिर है, मतलब ज़्यादा पक्का नहीं है। कुछ साल पहले जमींदार बजरावन काबाशी और मुलिक उन्होंने एक बड़ा घर बनाया था मंदिर के लिए। बट फॉर द लास्ट 65 years द टेम्पल हैज़ बीन ब्रोकन डाउन एंड अबेंडन। तो उसका देखरेख करने के लिए कोई नहीं बाद में। आज भी जो अवशेष है कुछ पुराने मंदिर के आज भी दिखते हैं। तुलसी पिल्लर है मंदिर के पास निकट में, और हर साल कार्तिक में धनंजय के तिरुभाव दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो इट इज सेड फॉर दैट फॉर सम टाइम पंडित धनंजय वॉज इन संकीर्तन पार्टी अंडर द डायरेक्शन ऑफ चैतन्य महाप्रभु, एंड देन ही वेंट टू वृंदावन। बिफोर गोइंग टू वृंदावन he lived for some time in a village named Sanchada Panchada, which is 6 miles south of the Memari railway station. तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार वो संकीर्तन सेवा करते थे। फिर इसके बाद वृंदावन चले गए,
और फिर कुछ समय तक ये इस गांव में रहते, एक गांव में रहते. Then he left the responsibility for worship with a disciple and went back to Vrindavan. After returning from Vrindavan to Shitala Grama, he established a deity of Gaura Sundar in the temple. तो वृंदावन से फिर से अपने जब गांव में आए तो उन्होंने गौर सुंदर विग्रह का उपासना की. पंडित धनंजय के वंशज आज भी है जो मंदिर के उपासना करते हैं, मंदिर में विग्रह की उपासना करते हैं. महेश पंडित व्रजेर उदार गोपाल धक्का वाद्य नृत्य करे प्रेमे मातो याल. महेश पंडित, 7th of the 12 Gopalas, 7वें गोपाल, was very liberal in great love of Krishna. He danced to the beating of a kettle drums like a madman. एकदम वाद्य के अनुसार वह नृत्य करते थे. धक्का वाद्य उसे बोलते हैं, धक्का वाद्य से ड्रम की तरह था, ड्रम जैसा रहता है वो, कीचल ड्रम्स. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अनुभाष्य में लिखते हैं कि पालपाड़ा उनका गांव है जो कि नदिया में डिस्ट्रिक्ट में आता है. It is said that formerly Mahesh Pandit lived on the eastern side of Jirat in the village known as Yashipura and Masipura. When Masipura merged into the riverbed of the Ganges, the deities there were brought to Palapada, which is situated in the midst of various villages such as Beledanga, Berigrama, Sukhasagara, Chandude and Manasapota. There are about 14 villages and their entire neighborhood is known as Panchanagara Paragana. It is mentioned that Mahesh Pandit joined the festival performed by Nityanand Prabhu at Panihati. रघुनाथ दास जो स्पॉन्सर किए थे, फीस्ट स्पॉन्सर किए थे नित्यानंद प्रभु के कहने के अनुसार, उस पानीहाटी में फेस्टिवल में महेश पंडित उपस्थित थे. नरोत्तम दास ठाकुर ऑल्सो ज्वाइन द फेस्टिवल. महेश पंडित ने उनको देखा था वहाँ पे. तो इन द टेम्पल ऑफ महेश पंडित देर आर डीटीज ऑफ, नहीं ये तो फिर ये कैसे हो गया, नरोत्तम दास ठाकुर वॉज ऑल्सो ज्वाइन कैसे होगा? आई थिंक ये फेस्टिवल दूसरा है. फिर इट इज मेंशन दैट महेश पंडित ज्वाइन द फेस्टिवल परफॉर्म बाय श्री नित्यानंद प्रभु एट पानीहाटी. नरोत्तम दास ठाकुर ऑल्सो ज्वाइंड इन द फेस्टिवल एंड महेश पंडित सॉ हिम एंड दैट ओकेशन. तो ये तो दूसरा फेस्टिवल है क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ पे तभी नहीं थे ना महाप्रभु के समय पे. So in the temple of Mahesh Pandita there are deities of Gaur Nityanand, Shri Gopinath, Shri Madan Mohan and Radha Govind as well as Shalagram Shila. Navadvipe Purushottama Pandita Mahashaya Nityananda Name Jara Mohan Madhaya. पुरुषोत्तम पंडित जो नवद्वीप के वासी थे वो 8वें गोपाल, गोलोक वृंदावन के 8वें गोपाल जो बलराम जी के संगी हैं. He would become almost mad as soon as he heard the holy name of नित्यानंद प्रभु. नित्यानंद प्रभु का नाम सुनने से वो मदोन्मत्त हो जाते थे. चैतन्य भागवत में लिखा है कि पुरुषोत्तम पंडित वो नवद्वीप में जन्म लिए थे और नित्यानंद प्रभु के बहुत शुद्ध भक्त थे और उनका पहले का नाम है स्तोक कृष्ण उनका नाम है पहले का गोलोक वृंदावन में. बलराम दास कृष्ण प्रेम रस स्वादी नित्यानंद नामे हया परम उन्मादी. बलराम दास always fully tasted the nectar of love of Krishna. Upon hearing the name of Nityanand Prabhu, he would become greatly maddened. और एक उनका सेवक है बलराम दास. महाभागवत यदु नाथ कवि चंद्र जहार हृदय नित्य करे नित्यानंद. यदुनाथ कविचंद्र भी बहुत बड़े भक्त थे और नित्यानंद प्रभु के, और नित्यानंद प्रभु सदैव उनके हृदय में नृत्य करते थे. चैतन्य भागवत मध्यखंड में लिखा गया है कि देयर इज अ जेंटलमैन वाज नोन एज रत्नगर्भ आचार्य, वॉज अ फ्रेंड ऑफ श्री चैतन्य महापुरुष फादर. उनके महापुरुष के पिता के मित्र रत्नगर्भ आचार्य.
दे हैड बीन रेसिडेंट्स ऑफ द सेम विलेज। रत्नगर्भ आचार्य के 3 पुत्र थे, कृष्णानंद, जीव और यदुनाथ कविचंद्र। ओके, महाप्रभु के जनरेशन के वो यदुनाथ कविचंद्र। राधे जार जन्म कृष्ण दास द्विजवर, श्री नित्यानंदे रते परम किंकर। 21st devotee of Sri Nityanand in Bengal was Krishnadas Brahman, who was a first class servant of the Lord. So in this word, Radhe refers to Radha Desha, the part of Bengal where the Ganges does not flow. Okay, Radha Desh, उस जगह को कहते हैं। काला कृष्ण दास बड़ वैष्णव प्रधान, नित्यानंद चंद्र विनु नहीं जाने आना। 22nd devotee of Lord Nityananda Prabhu was Kala Krishna Das, who was a 9 coward boy. He was a first class Vaishnava and did not know anything beyond Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu के भक्त कौन? भक्त कौन? काला कृष्ण दास। गौर गणोदेशी दीपिका में लिखा है काला कृष्ण दास कौन है? कालिया कृष्ण दास was formerly a गोप, उनका नाम है लवंग गोप नाम है। तो 12 कावड़ बॉय में से एक है, ग्वाल बालकों में से। अनुभाष्य में लिखा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने, कालिया कृष्णदास had his headquarters in a village named Akaihata, which is situated in the district of Burdwan within the jurisdiction of the post office and police station of Katwa। तो इसका एड्रेस दिया है सब। तो यह अकाईहाता बहुत ही छोटा गांव है। चैत्र के समय पे ऑन द डे ऑफ वारुणी वहाँ पे उनका तिरुभाव दिवस मनाया जाता है। श्री सदाशिव कविराज बड़ महाशय, श्री पुरुषोत्तम दास ताहार तनय। 23rd, 24th prominent devotees of Nityananda Prabhu were Sadashiv Kaviraj and his son Purushottama Das, who was the 10th Gopal. अजन्मनि मग्न नित्यानंदेर चरणे, निरंतर बाल्य लीला करे कृष्ण सने। तो जन्म से ही पुरुषोत्तम दास वो नित्यानंद प्रभु के चरणों की सेवा में लगे रहते थे और सदैव वह बाल्य लीला में मग्न हुआ करते थे। यू ऑलवेज एंगेज इन चाइल्डिश प्ले विथ लॉर्ड कृष्णा। नित्यानंद प्रभु के गांव में भी आप देखेंगे वैसे लीलाएं करते थे। कभी कभी नित्यानंद प्रभु अपने ग्वाल सखाओं के साथ भी रामायण की लीला का अनुकरण करते थे, कभी कभी कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करते थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राइट्स इन हिज अनुभाष्य, Sadashiva Kaviraj and Nagara Purushottama, who were father and son, are described in the Chaitanya Bhagavata as Mahabhagyavana, greatly fortunate. वो भी वैद्य परिवार से थे। गौर गणोदेशी दीपिका के अनुसार चंद्रावली, a most beloved gopi of Krishna's, later took birth as सदाशिव कविराज। तो ये कोई साधारण नहीं है, चंद्रावली गोपी है सदाशिव कविराज। And Kamsari Sena, the father of Sadashiv Kaviraj, was formerly the gopi named Ratnavali in Krishna's pastimes. Okay, चंद्रावली के टोली की रत्नावली है, टोली में उनके। So all the family members of Sadashiv Kaviraj were great devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Next verse. तारपुत्र महाशय श्री कान्हू ठाकुर, जार देह रहे कृष्ण प्रेमामृतपुर। Sri Kanu Thakur, a very respectable gentleman, was the son of Purushottama Das Thakur. He was such a great devotee that Lord Krishna always lived in his body. अनुभाष्य के अनुसार कान्हू ठाकुर का मेन हेडक्वार्टर था झिकरा घाट रेलवे स्टेशन टू द रिवर नोन एज कपोटाक्ष. तो वन हैज टू प्रोसीड बाय बोट फ्रॉम द उनके घाट से जाना पड़ता था, घाट के स्टेशन से जाना पड़ता था उनके गांव, उनके हेडक्वार्टर में जाने के लिए.
he can see Bodakhana, the headquarters of कान्हू ठाकुर. तो कान्हू ठाकुर के जन्म के बाद उनकी माता जानवा की मृत्यु हो गई. जब वो 12 साल के थे तभी नित्यानंद प्रभु ने अपने घर में खड़दह में लेके गए. कान्हू ठाकुर वॉज बॉर्न समटाइम इन बंगाली इन AD 1535. ही टुक बर्थ ऑन द रथ यात्रा डे. क्योंकि भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे पहले से ही. नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु ने उनको नाम दिया क्या? शिशु कृष्णदास. क्या नाम दिया? शिशु कृष्णदास. जब 5 साल के थे तभी वो वृंदावन गए जानवा माता के साथ. और जो गोस्वामी थे उनके कान्हू ठाकुर के जो विलक्षण जो भाव उनके शरीर में दिखते थे तभी उनका नाम गोस्वामियों ने, षड गोस्वामियों ने नाम क्या दिया? कानाई ठाकुर. मतलब नित्यानंद बहुत छोटे थे नित्यानंद को जब मिले वो तभी. कान्हू ठाकुर के परिवार में एक राधा कृष्ण की विग्रह का उपासना होती है जिसका नाम है प्राणवल्लभ. और कहा जाता है कि उनके परिवार ने बाद में उस विग्रह की आराधना की. इट इज सेड दैट इज फैमिली वर्शिप. ओके, उनके परिवार ने आराधना की थी महाप्रभु के अवतरण होने से पहले. When there was a Maharashtrian invasion of Bengal, the family of Kanu Thakur was scattered, and after the invasion on, one Hari Krishna Goswami of that family came back to their original home, that is Bodakhana, and re-established the Pran Vallabh deity. तो अभी ये जो विग्रह है प्राण वल्लभ वो बोधखाना में है और उनके वंशज आज भी उनकी उपासना करते हैं. खेतरी उत्सव जब जानवा माता जी और वीरभद्र गोस्वामी ने मनाया था खेतरी उत्सव, उस समय में ये कान्हाई ठाकुर थे. कान्हू ठाकुर के परिवार में माधवाचार्य, one of Kanu Thakur's family members, Madhvacharya, married the daughter of Sri Nityanand Prabhu, who was named Ganga Devi. Both Purushottama Thakur and Kanu Thakur had many disciples from Brahman families. Most of the disciple descendants of Kanu Thakur now reside in the village named Gadabeta by the river Shilavati in the Midnapure district. महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उदाहरण सर्वभावे सेवे नित्या नंदेर चरण. उदाहरण दत्त ठाकुर, 11th among the 12 cowherd boys, who was an exalted devotee of Lord Nityanand Prabhu. He worshipped the lotus feet of Lord Nityanand in all respects. अनुभाष्य के अनुसार गौर गणोदेश दीपिका में लिखा गया है, उदाहरण दत्त ठाकुर वह ग्वाल बालक थे वृंदावन के जिनका नाम था सुबाहु. Calcutta was developed under British rule by the influential mercantile community and especially by Swarnavanik community, who came down from Saptagrama to establish their business and homes all over Calcutta. They were known as Saptagrami, and a mercantile community of Calcutta, and most of them belonged to the Mullik and Sil families. More than half of Calcutta belonged to this community, as did Srila Udharana Thakur. Udharana Thakur भी इसी community से हैं. Our parental family, प्रभुपाद कह रहे हैं, our paternal family also came from this district and belong to the same community. हमारे वंशज भी उसी district से आए हुए हैं. The Mullik of Calcutta are divided into two families, namely the Sil family and De family. Okay, Mullik family से आए हुए हैं, तो प्रभुपाद De family के हैं. All the Mulliks of the De family originally belong to the same family and Gotra. उनका गोत्र एक ही है. We also formally belong to the branch of the De family, those members whose members intimately connected with the Muslim rulers received the title Mullik. In Chaitanya Bhagavat, I think लीलामृत में भी है, चैतन्य भागवत अंत्यखंड उदाहरण दत्त कहा गया उनके बारे में कि was an extremely elevated and liberal Vaishnava. He was born with the right to worship Nityanand Prabhu. सदैव नित्यानंद प्रभु की उपासना करते थे. The Swarnavanik community to which Udarna Datta belonged was actually a Vaishnava community. Its members were bankers and gold merchants. इसलिए प्रभुपाद जब छोटे थे तभी स्वर्णवानिक कम्युनिटी के बना हुआ मंदिर में मलिक फैमिली के मंदिर में जाते थे. वहाँ पे राधा कृष्ण की उपासना हुआ करती थी.
तो वैसे परिवार ही, उनका वंशज ही सभी लोग भक्त थे। तो इनके मेंबर्स ज़्यादा बैंकर और गोल्ड मर्चेंट्स हुआ करते थे। स्वर्ण वाणिक, वाणिक यानी वाणिक और स्वर्ण, स्वर्ण यानी गोल्ड। लॉन्ग अगो देयर इज वॉज a misunderstanding between Balal Sen and the Swarna Vanik community because the great banker Gauri Sen, because of the great banker Gauri Sen. Balal Sen was taking loans from Gauri Sena and spending money extravagantly, and therefore Gauri Sena stopped supplying money. कई वर्षों पहले एक इशू हुआ था बलाल सेन और गौरी सेन के बीच में। बलाल सेन क्या करता था, गौरी सेन से पैसे लेता था उधार में, और वह कैसे वैसे इसको खर्च करता था, और गौरी सेन ने क्या किया, फिर उनको पैसा देना बंद किया। तो बलाल सेन ने बदला लेने के लिए उन्होंने एक साजिश रची कि स्वर्ण वाणिक जो लोग हैं, ये लोग जो ये गौरी सेन जिससे आया है, उनको हम लोग आउटकास्ट कर देंगे, उनको हम बहिष्कार कर देंगे, बॉयकॉट कर देंगे। Since then they have been ostracized from the higher caste, namely the ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। इसलिए मलिक फैमिली को ब्राह्मणों में गिना नहीं जाता है। उसके बाद पर श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से स्वर्ण वाणिक कम्युनिटी वॉज अगेन एलिवेटेड। इट इज सेड इन चैतन्य भागवत, यतेक वाणिक कुल उदाहरण हईते पवित्र हईल द्विध नाही कहियाहते। There is no doubt that all the community members of Suvarna Vanik society were again purified by Shri नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु ने उन पर कृपा की। सप्तग्राम में आज भी मंदिर है, षडभुज रूप में चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है। वह उदाहरण दत्त ठाकुर ने उनकी उपासना की थी। On the right side of Shri Chaitanya Mahaprabhu is the deity of Nityanand Prabhu, and on the left side is Gadadhar Prabhu. There are also Radha Govind Murti and a Shalagram Shila, and below the throne is a picture of Shri Udharana Datta Thakur. In front of the temple there is now a big hall, and in front of the hall is a Madhavi Lata plant. The temple is in very shady, cool and nicely situated location. When we returned from America in 1967, Prabhupada keh rahe, the executive committee members of this temple invited us to visit it, and thus we had the opportunity to visit this temple with some American students. Formerly in our childhood, we visited the temple with our parents because all the members of the Suvarna Vanik community enthusiastically take interest in this temple of Udharana Datta Thakur. प्रभुपाद पहले बचपन में जाया करते थे अपने परिवार के साथ उद्धारण दत्त ठाकुर के मंदिर में, और उसके बाद प्रभुपाद ने जब इस्कॉन एस्टैब्लिश करने के बाद कुछ विदेशी डिसाइबल को लेके गए थे यहाँ पे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अनुभाष्य में कहते हैं कि बाबाजी ऑफ नेम निताई दास अरेंज फॉर अ डोनेशन ऑफ 12 बीघा ऑफ लैंड। एक निताई दास बाबा जी ने 12 बीघा ज़मीन डोनेशन दिया था मंदिर को उदाहरण दत्त के। द मैनेजमेंट ऑफ द टेम्पल लेटर डेटेरिएटेड, बट देन इन 1899 थ्रू द कॉपरेशन ऑफ द फेमस बलराम मल्लिक ऑफ हुगली, who was a sub-judge and many rich Swarnavanik community members, the management of temple improved greatly. उसके बाद बहुत फाइनेंशियल इश्यूज हुए, फिर इसके बाद मल्लिक फैमिलियों ने और स्वर्णवानिक फैमिलियों ने उनको डोनेशंस देके मंदिर को फिर से अच्छी तरह से स्थिति में लेके आए। 50 साल पहले उदाहरण दत्त के फैमिली मेंबर जगन मोहन दत्त, उन्होंने एक काष्ठ का विग्रह उदाहरण दत्त ठाकुर का स्थापित किया इस मंदिर में, पर अभी वो मूर्ति नहीं है, अभी सिर्फ पिक्चर है उनका। तो ऐसा कहा जाता है कि उदाहरण दत्त ठाकुर का जो विग्रह है पाषाण का, वो लेके गए थे कौन, श्री मदन मोहन दत्त ने, और वह उसकी उपासना शालिग्राम शिला के बाद शालिग्राम शिला के साथ होती है श्रीनाथ दत्त उनका वर्शिप करते हैं। So Udharana Datta Thakur was the manager of the state of Big Zamindar in Naihati, about 1.5 miles north of Katwa. फिर उदाहरण दत्त ठाकुर ने निताई गौरे के भी विग्रह की स्थापना की, और वह गृहस्थ रहे पूरे जीवन भर, और उनके पिता का नाम है श्रीकर दत्त और माता का नाम है भद्रावती, और उनके पुत्र का नाम है श्रीनिवास दत्त। आचार्य वैष्णवानंद भक्ति अधिकारी, पूर्वे नाम छिल जार रघुनाथपुरी,
The 27th prominent devotee of Nityanand Prabhu was Acharya Vaishnavananda, a great personality in devotional service. He was formerly known as Raghunath Puri. Gaur Ganodesha Deepika, it is said that Raghunath Puri was previously very powerful in the 8 mystic success, यानी 8 सिद्धियाँ उनके पास थी, ऐसे कहा जाता है. He was an incarnation of one of the successes. विष्णुदास नंदन गंगादास 3 भाई, पूर्वे जार घरे छिला ठाकुर निताई. Another important devotee of Nityanand Prabhu कौन थे? विष्णुदास, जिनके 2 भाई थे, नंदन और गंगादास. नित्यानंद प्रभु कभी उनके घर में निवास करते थे. नित्यानंद भृत्य परमानंद उपाध्याय, श्री जीव पंडित नित्यानंद गुण गाय. परमानंद उपाध्याय वॉज नित्यानंद प्रभु's ग्रेट सर्विटर. बहुत बड़े सेवक थे परमानंद उपाध्याय. श्री जीव पंडित glorified the qualities of Shri Nityanand Prabhu. Shri Paramanand Upadhyaya was an advanced devotee. His name is mentioned in Chaitanya Bhagavat, where Jiva Pandit, Shri Jiva Pandit is also mentioned as the second son of Ratnagarbha Acharya and a childhood friend of Hadai Ojha, the father of Nityanand Prabhu. तो नित्यानंद प्रभु के पिता का नाम है हडाई पंडित, हडाई ओझा. तो उनके मित्र थे परमानंद उपाध्याय. सो गौर गणोदेश दीपिका अनुसार वह थे इंदिरा गोपी. परमानंद गुप्त कृष्ण भक्त महामती, पूर्वे जार घरे नित्यानंदेर वसती. 31st डिवोटी, 31वें भक्त नित्यानंद प्रभु के कौन है? परमानंद गुप्त. बहुत शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण के, और he was very highly advanced in Krishna consciousness, spiritual consciousness. पहले नित्यानंद प्रभु उनके घर में भी कुछ समय के लिए रहे थे. परमानंद गुप्त ने एक प्रार्थना की रचना की थी कृष्ण के लिए, जिसका नाम है कृष्ण स्तवावली. गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार वह गोपी थी, उनका नाम था मंजू मेधा. नारायण कृष्ण दास आर मनोहर, देवानंद चारी भाई निताई किंकर. और नित्यानंद के किंकर यानी सेवक और कौन है? 32nd, 33rd, 34th, 35th. 4 नारायण, कृष्णदास, मनोहर और देवानंद. होड़ कृष्णदास नित्यानंद प्रभु प्राण, नित्यानंद पद विनो नाही जाने आना. होड़ कृष्णदास को नित्यानंद प्रभु के अलावा कुछ पता ही नहीं था. हुज लाइफ एंड सोल वॉज नित्यानंद प्रभु. होड़ कृष्णदास 36th डिवोटी ऑफ लॉर्ड नित्यानंद प्रभु. सदैव नित्यानंद प्रभु के चरणों में समर्पित थे और उनके अलावा कुछ नहीं जानते थे. बांग्लादेश में उनका जन्म हुआ था, बड़ागाछी जगह में. नकड़ी मुकुंद सूर्य माधव श्रीधर, रामानंद वसु जगन्नाथ Mahidhara. So Lord Nityanand's devotees, Nakadi was the 37th. So 37th, 38th, 39th, 40th, 41st, 42nd and 43rd and 44th. कौन कौन है? मुकुंद, ये नकड़ी, मुकुंद, सूर्या, माधव, श्रीधर, रामानंद, जगन्नाथ और महीधर. श्रीधर वॉज द 12th गोपाल. तो मैं वही ढूंढ रहा था 12 गोपाल किधर गए. 12 गोपालों में से 12 गोपाल श्रीधर थे. श्रीमंत गोकुल दास हरिहरानंद, शिवाई नंदाई अवधूत परमानंद. तो ये सब नाम है नित्यानंद प्रभु के भक्तों के. वसंत नवणी होड़ गोपाल सनातन, विष्णाई हजरा कृष्णानंद सुलोचन. ये भी सब भक्तों के नाम नित्यानंद प्रभु के दिए गए हैं. कंसारी सेन राम सेन, रामचंद्र कविराज, गोविंद श्रीरंग मुकुंद 3 कविराज.
श्री रामचंद्र कविराज, 58th ग्रेट डिवोटी कौन है? कमसारी सेना। 59th रामसेना, रामचंद्र कविराज, देन गोविंद, श्रीरंग, मुकुंद, ये सभी वैद्य थे। बहुत सारे वैद्य, प्रभुपाद भी अपने आप को बोल देते पहले मैं वैद्य था। तो श्री रामचंद्र कविराज, सन ऑफ खंडावासी चिरंजीव एंड सुनंद, वॉज द डिसाइपल ऑफ श्रीनिवास आचार्य। इंपॉर्टेंट फिगर है रामचंद्र कविराज जो है, रामचंद्र संगमांगे नमोत्तर, यही है आई गेस, यही है ना। एंड द मोस्ट इंटीमेट डिवोटी फ्रेंड ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम ठाकुर से पहले वो चले गए। Who prayed several times for his association. Okay, his youngest brother was Govinda Kaviraj. Shri Rajiv Goswami was very much appreciated Shri Ramachandra Kaviraj's great devotion to Lord Krishna and therefore gave him the title Kaviraj. उनको कविराज उपाधि किसने दी? श्री जीव गोस्वामी जी ने। श्री रामचंद्र कविराज who was perpetually disinterested in family life, greatly assisted in the preaching work of श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर। उस समय पे प्रोमिनेंट प्रीचर थे श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर के साथ रामचंद्र कविराज जुड़ गए थे। ये तीनों ट्रैवल कर रहे थे एक्चुअली। ओके, ही रिसाइडेड फर्स्ट इन श्रीखंड, पहले श्रीखंड में रहे, फिर बाद में कुमार नगर जो गंगा के तट पर है। गोविंद कविराज जो है रामचंद्र कविराज के भाई है और उनके चिरंजीव के यंगर, सबसे यंगेस्ट सन है और श्रीखंड में रहते थे गोविंद कविराज। ऑल्दो अ फर्स्ट अ शाक्त, पहले गोविंदराज शाक्त थे, दुर्गा माता जी के उपासक थे, पर बाद में उनकी दीक्षा हुई श्रीनिवास आचार्य के साथ। गोविंद कविराज पहले श्रीखंड में रहते थे, फिर वह कुमार नगर में शिफ्ट हो गए। और गोविंद कविराज ने 2 ग्रंथ लिखा है, संगीत माधव और गीतामृत, इसलिए वो बहुत बड़े वैष्णव कवि माने जाते थे। जीव गोस्वामी ने उनको टाइटल दिया, उनको भी कविराज। तो उनका वर्णन भक्ति रत्नाकर ग्रंथों में दिया है, लाइब्रेरी में है भक्ति रत्नाकर। कमसारी सेना वॉज फॉर्मली रत्नावली इन व्रजा एज डिस्क्राइब्ड इन गौर गणोदशी दीपिका। कई बार होता है कि कई बार जो गोलोक में वृंदावन में जो नाम है सेम लगते हैं। हो भी सकता है कि 2 अलग अलग गोपियाँ भी हो सकते हैं सेम नाम के, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों का विस्तार भी एक गोपी 2 जगह में विस्तार कर रही है। पीतांबर मध्वाचार्य दास दामोदर शंकर मुकुंद ज्ञान दास मनोहर, सभी नित्यानंद प्रभु के शुद्ध भक्त है। नर्तक गोपाल राम भद्र गौरांग दास नरसिंह चैतन्य मीना केतन रामदास। तो मीना के, इसमें से मीना केतन रामदास जो है वो संकर्षण के अवतार है गौर गणोदशी दीपिका के अनुसार। वृंदावन दास नारायणीर नंदन चैतन्य मंगल जे हो करिल रचना। और एक मुख्य बात जो है, वृंदावन दास ठाकुर जो कि श्रीमती नारायणी के पुत्र है। हाँ, नारायणी कौन है? भांजी है, भतीजी किसकी? श्रीवास ठाकुर की। उनके पुत्र वृंदावन दास ठाकुर, उन्होंने चैतन्य मंगल, वो भी भक्तों में शिरोमणि है। किनके? नित्यानंद प्रभु के। भागवते कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास चैतन्य लीला ते व्यास वृंदावन दास। तो भागवत, श्रीमद् भागवतम को किसने लिखा है? श्रील व्यासदेव जी ने। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का व्यासदेव कौन है? वृंदावन दास ठाकुर। तो वृंदावन दास ठाकुर और कोई नहीं बल्कि व्यासदेव के ही इनकारनेशन है। कभी कभी खुद ही बोलते हैं कि आगे चल के व्यासदेव वर्णन करेंगे, हाँ, लीलाओं का विस्तार रूप में, ऐसे भी कभी कभी कहाँ पे लिखते हैं। तो इसका मतलब ये ले सकते हैं कि उनके संप्रदाय में जो आचार्य हैं वो लोग भी वर्णन करेंगे। सो फ्रेंडली यहाँ पे लिखा है इनकारनेशन ऑफ वेद व्यास एंड ऑल्सो फ्रेंडली काउहर्ड बॉय नेम्ड कुसुमा पीड़ा इन कृष्णलीला। कृष्णलीला में कौन है? कुसुमा पीड़ा, ग्वाल बालक। चैतन्य भागवत श्री वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा हुआ, द सन ऑफ श्रीवास ठाकुर नीस Narayani was a combined incarnation of Vyasdev and the cowherd boy Kusuma Pida. There is a descriptive statement by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in his commentary on Sri Chaitanya Bhagavat
गिविंग द बायोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ द लाइफ ऑफ वृंदावन दास ठाकुर। उनकी बायोग्राफी शॉर्ट में लिखी गई है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने। सर्वशाखा श्रेष्ठ वीर भद्र गोसाई, तार उपशाखा जत तार अंत नाई। सभी ब्रांचेस में सबसे बड़ी ब्रांच कौन है? वीरभद्र गोसाई, सबसे टॉप मोस्ट। और उनके बहुत सारे उपशाखा हैं, कई सारे उनके अनुयायी हैं, उनका कोई गिनती नहीं। अनंत नित्यानंद गण के करु गणना, आत्म पवित्रता हेतु लिखिला कत गण। नित्यानंद प्रभु के जो गण हैं, जो एसोसिएट्स हैं, वो अनंत हैं। कितने लोगों की गिनती करूं? मैं अपने पवित्रता के लिए, अपनी शुद्धता के लिए, शोधन के लिए ये सब मैं बोल रहा हूं। ए सर्व शाखा पूर्ण पक्व प्रेम फले, चारे देखे तारे दिया भासैल सकले। जितने भी शाखा हैं जो नित्यानंद प्रभु के भक्त हैं, वो सभी पके हुए फल है कृष्ण प्रेम के। और वो क्या कर रहे हैं? वो भी फल को ये कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड दिस फ्रूट्स टू ऑल द मेट। कृष्ण प्रेम का पका हुआ फल जो उनके पास है वो सबको दे रहे हैं, और कृष्ण प्रेम से पूरे बाढ़ लेके आए हैं, कृष्ण प्रेम की बाढ़ लेके आए हैं। अनर्गल प्रेम सबार श्रेष्ठा अनर्गल, प्रेम दीते कृष्ण दीते धरे महाबल। जितने भी भक्त हैं उनके पास अद्भुत शक्ति है कि वह लोगों का उद्धार कर सके। टू डिलीवर अनऑब्स्ट्रक्टेड अनसीजिंग लव ऑफ कृष्णा। ऐसा कृष्ण प्रेम प्रदान करने के सामर्थ्य इन सभी भक्तों में है जिसको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी रुकावट नहीं ला सकता। उनके शक्ति से वो किसी को भी कृष्ण प्रेम दे सकते हैं और कृष्ण दे सकते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर हैज संग कृष्ण से तोमार कृष्ण देते पार, तोमार शक्तिया छे। सो इन दिस सॉन्ग भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि शुद्ध वैष्णव जो है वो कृष्ण के एक्चुअली कंट्रोलर है, प्रोपराइटर है। कृष्ण उनके हैं, हाँ, इसलिए कृष्ण प्रेम देना कि नहीं देना उनके हाथ में है। हाँ, कैन डिलीवर बोथ टू एनीवन। कृष्ण भी दे सकते हैं किसी को, कृष्ण प्रेम भी दे सकते हैं जिसको वो पसंद करे। इसलिए हमको कृष्ण के पीछे नहीं भागना है। किसके पीछे भागना है? शुद्ध वैष्णव के का आश्रय लेना है। देयरफॉर टू गेट कृष्णा एंड लव ऑफ कृष्णा वन मस्ट सीक द मर्सी ऑफ प्योर डिवोटीज। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादा, यस्या प्रसादान न गति ही कुतोपि। गुरु के कृपा से ही व्यक्ति को भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है। अगर गुरु की कृपा नहीं होगी तो कृष्ण की कृपा भी नहीं मिलेगी, वो भक्ति में एडवांस नहीं हो सकता। वैष्णव की कृपा से और प्रामाणिक गुरु की कृपा से व्यक्ति को कृष्ण भी मिलते हैं और कृष्ण प्रेम भी मिलता है। संक्षेपे कहिला ए नित्यानंद गण, जहार अवधि न पाय सहस्र वदन। संक्षेप में कहे हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, संक्षेप में कह दिया नित्यानंद प्रभु के जितने भी संगी हैं, अगर शेषनाग अगर उनके सहस्र मुखों से भी इनका वर्णन करें तो उसका कोई अंत नहीं मिलेगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आशा, श्री रूप रघुनाथ पदे जार आशा, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। विथ एन ardent desire to serve the purpose of Shri Rupa and Shri Raghunath, I Krishnadas narrate Shri Chaitanya Charitamrita following in their footsteps. Thus end the Bhakti Vedanta purports to Shri Chaitanya Charitamrita Adi Leela 11th chapter in the matter of the expansions of Lord Nityananda. तो नित्यानंद प्रभु के विस्तार और उनके अनुयायी, उनके संगियों के बारे में हमने सुना। अभी कौन बच गए? अद्वैत आचार्य और गदाधर पंडित। ये अगले अध्याय में हम सुनेंगे। थैंक यू सो मच श्रील प्रभुपाद की।